says applying makeup means attracting danger? I say do as much makeup as you want if it makes you feel good. Because a woman today can protect herself. All you need to do is learn some self-defense. So catch me on my upcoming video on women's self-defense with Master Chen. So put on that red lipstick and stay safe because your beauty with strength. Hi everyone, welcome to the new era of makeup. This is Rida Zahra, and if you're new here, like, subscribe and share Vegas.pk YouTube channel. So today's video is not about makeup, but it's about a very important topic. As we can see, the crime against women has really taken a rise, and it always feels like there is danger lurking around the corner. And as women, we have to constantly live in survival mode and we have to constantly be alert, and it's getting exhausting. So today's video is all about ladies self-defense, जिसमें हम आपको कुछ drills सिखाएंगे which is going to be useful for your safety, and we will also answer your commonly asked question about women's safety. And by the end of the video, I will make a special announcement because through this video, you will get a chance to win exciting gifts from Vegas.pk, so stick around till the end. So for today's episode, we have a very special guest with us. He is a Chinese Pakistani national. उन्होंने 12 साल की एज से ही MMA स्टार्ट कर दिया था, and by the age 20 he had his own training academy known as the Dragon Society. He has been trained from China's one of the best Beijing Wushu Kung Fu Training Academy, and he received his Black Slash from Pakistan Wushu Federation. He has received multiple awards and medals from Pakistan Army and Pakistan Police, और हमने उनके कुछ stunts भी देखे हैं in some of renowned Pakistani films, and the list goes on and on. On top of all that, he's my coach and my forever mentor. I'm so honored to have you here today, Master Chen. Thank you very much. Hello, everyone. So, Master Chen, my first question from you is कि self-defense क्या है और mixed martial arts क्या है, and किस एज में लड़कियों को ये स्टार्ट कर देनी चाहिए ट्रेनिंग? MMA स्टैंड फॉर मिक्स मार्शल आर्ट्स. जो प्रैक्टिशनर्स हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स, वो एक स्टाइल नहीं सीखते हैं जस्ट लाइक बॉक्सिंग है. वो किकिंग भी करते हैं, ग्रैपलिंग भी करते हैं और सबमिशन भी कर लेते हैं. तो इस वजह से ये दूसरे मार्शल आर्ट से बहुत बेहतर है. जहाँ तक एज का है, वो तो किसी एज में भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसका कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना. लेकिन आई विल से कि 8 years old अगर कोई लड़की बच्ची या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इट्स वेरी गुड एज टू जॉइन अ क्लब. Alright, so there is a lot of misconception कि females should not go for such sports, कि martial arts के लिए या कोई भी इस तरह के जो combat sports हैं उसके लिए females अगर जाएंगी तो वो internally weak होती हैं and then some damage can be done. So what's your point of view on that? जी, जहाँ तक फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, मेंस आर नेचुरली बॉर्न जो होते हैं ना स्ट्रॉन्गर देन वुमेन्स. अब ये मतलब नहीं है कि लड़कियाँ जो नहीं होते नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. दे कैन लर्न मार्शल आर्ट्स एंड दे कैन बी स्ट्रॉन्गर देन मैन. सो इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट एज अ वुमन, ठीक है ना. जब आप सीखते हैं आपको पता होता है कि आपका जो बॉडी है ना कैन ट्रांसफर इनटू द वेपन, यू कैन हर्ट समबडी, देन यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना. तो उससे आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाते हैं मुश्किल वक्त में जो बैड सिचुएशंस होते हैं. तो इसलिए जो नहीं होते, ये बिल्कुल बात नहीं है कि लड़कियां नहीं सीख सकते. और फिर जहाँ तक सिचुएशन है आज का चीज़ हालत है, तो आई विल से सारा पेरेंट्स को भी पता चल गए हैं कि वुमेंस जो नहीं होते अब वो पहले नहीं रहा. अब जो नहीं होता दे नीड टू लर्न हाउ टू फाइट बैक्स एंड बी स्ट्रॉन्ग. सो वो इतना अभी मसला नहीं रहा है कि लड़कियों को घर पे रहना है. तो दैट्स फाइन कि कोई क्लब ज्वाइन कर लें लड़कियाँ और सीखें, ठीक है ना, और अपना दिफा करें. Absolutely, and I totally agree with him. You know, it's the 21st century and women are modern today. They should not feel that they're physically weak. वो जब तक अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगी और जब तक कोई स्पोर्ट्स में शामिल नहीं होंगी, they're not going to build strength. And my second question was regarding confidence, कि कैसे females का confidence boost up होता है, which you have answered somehow. But would you like to throw some more light on how do women get a confidence boost after joining MMA or learning self-defense?
हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, तो इसी तरह लड़कियां जो नहीं होती, अगर वो सीखते नहीं हैं, ठीक है ना, उसको पता नहीं है कि उसका जो हाथ है, पाँव है, उसका जो इवन हेड जो होता है ना, ये आपको एक डेंजरस सिचुएशंस में काम आते हैं, आप फाइट बैक कर सकते हैं एज वेपन। तो जो सीखते हैं उसको पता चल जाता है कि मैं जो नहीं होते किसी का पाँव शाँव तोड़ सकता है, उसका पाँव मोड़ सकता है, ठीक है ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस खुद को उसका भर जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि वो ट्रेनिंग कर लें। All right. So my third question is, and this is beauty related because you know this is a beauty channel. So how can we ignore that? And I know कि martial arts या कोई भी physical activity जो होती है उससे आपकी beauty पे और overall appearance पे काफ़ी अच्छा effect आता है. So I didn't want to ignore this question. So can you tell us that how does it positively affect overall के जिस तरह like you know एक तो we know कि you know you get in a better shape, but it also has good impact on your skin and your hair. So how does martial arts or any physical activity help? आई वुड से जो लड़कियां मार्शल आर्ट करती हैं वो कभी बुरे ही नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए ना मार्शल आर्ट कर रहे हैं, यू ऑलवेज लुक यंग बिकॉज इट अफेक्ट्स योर हेयर, योर स्किन्स, योर बॉडी शेप्स, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो नहीं होते कि आप एवर यंग रहते हैं, तो इसलिए ज़रूर मार्शल आर्ट कर लें, ठीक है ना। एंटी एजिंग फॉर्मूला है। हाँ। So guys, this is the best anti-aging formula. So if you want to be forever young and invincible, you should definitely give a try to martial arts. Yes. Okay, so my next question is कि जब भी कोई dangerous situation होती है, and usually all these situations don't come announced, एक abrupt situation होती है, तो कब आपको पता होना चाहिए कि आपने अटैक करना है और कब आपको जो है काम या composed रहना होता है in a situation? देखें, पहला चीज़ तो ये है कि आप को अपना सिचुएशंस का नहीं होता है पता हो। वैसी जैसे अगर आप घर में हैं तो क्या आपने सेफ्टी मेजर रखे कि नहीं। अगर आप रोड में चल रहे हैं तो ठीक है ना, आप कैसे गली में चल रहे हैं जहाँ कोई नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप फील करते हैं कि ये स्ट्रीट जो होता है ना सेफ़ नहीं है, तो फिर थोड़ा अलर्ट ज़्यादा रहें, ठीक है, ताकि जो नहीं होता है आप मुश्किल वक्त में या कोई एकदम से कोई पीछे आपका कर रहा है तो आपको पता हो। दिस इज़ वेरी बैड कि आजकल बहुत सारे लड़कियां भी है या इवन मेयर जो होते हैं ना, यानी चल रहे होते हैं तो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप कॉन्शियस नहीं होता, पीछे आपका कोई कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। तो मेरा ये एडवाइस ये है कि ऐसे सिचुएशन में जब भी आप कहीं से वॉक करें, चलें, ठीक है ना, कॉन्शियस रहें, ठीक है ना, और मोबाइल ना यूज़ कर लें ताकि जो कोई पीछा कर रहा है आपको पता हो। और फिर उसके बाद जो नहीं होता है, जैसे सिचुएशन आते हैं आपको देखने हैं कि आप कितने डेंजर में हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है मेजर करना कि अगर आप यानी बहुत ज़्यादा यानी डेंजरस वाले सिचुएशंस में हैं, ठीक है ना, पहले से अगर आप भाग सकते हैं यानी निकल सकते हैं, निकल जाओ, ठीक है ना। और अगर वो वीक है आपका अटैकर्स, ठीक है ना, हो सकता है यू कैन फाइट बैक, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, अलर्ट रहें, कीप काम रहें, और फिर उसके बाद ना बी क्विक अलर्ट्स, ठीक है ना, जल्दी रिएक्ट करना है, क्या करना है, ये डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और आखिरी सूरत हाल में जब वो फिज़िकल को एसोर हो जाते हैं तो आप का जो मार्शल आर्ट का जो टेक्निक जो सीखे हैं वो उसको ज़रूर यूज़ कर लें। ऑलराइट, सो कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे बंदा फ्रीज़ हो जाता है, एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस कि समटाइम्स योर बॉडी इज़ इन सच अ स्टेट ऑफ शॉक दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एंड यू जस्ट फ्रीज़। सो व्हाट कैन यू डू इन दैट सिचुएशन? हाँ, हो सकता है इसकी कोई अगर ड्रिल्स हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। डिपेंड करते हैं कि किस तरह फ्रीज हो रहे, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है ना। अगर आप यानी अलर्ट हो सकता है, किसी को जो नहीं होता हेल्प मांग सकते हैं, तो ऐसे सूरत में जल्दी से हेल्प मांगना, जितनी जल्दी आपको कोई हेल्प मिल जाएंगे तो आप थोड़ा सा कूल डाउन रिलैक्स फील करेगा, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप कॉन्स्टेंटली या प्रैक्टिस में हैं और मार्शल आर्ट्स करते हैं, सो आपके एक रिफ्लेक्स भी बन जाता है कि व्हेन समथिंग कम्स, अ सिचुएशन कम्स, आप नेचुरली यू नो यू कैन अटैक और फाइट बैक. So it all depends on, you know, your focus and your attention. So be alert whenever you're like walking in a street, and as humans वैसे भी हमारी instinct काफ़ी strong होती है, so we should really follow our gut feeling. If you feel something's wrong, you should pay attention to that and don't ignore that. So what if somebody has a gun? Should you run?
देखिए, इफ़ समबडी हैज़ अ गन, ठीक है ना, आप भागने की कोशिश करते हैं तो बिकॉज इट कैन शूट इट एनी रेंज, ठीक है ना, तो इट्स नॉट वेरी गुड आइडिया, ठीक है ना, कि आप एकदम से भाग जाएं, ठीक है ना। अगर किसी के पास जो नहीं होते गन नहीं है, ठीक है ना, और आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये सामने कोई खड़ा है और डेंजर आ रहा है, तो उससे थोड़ा दूर रहें, ठीक है ना, साइड पे हट जाएं और इस्केप कर लें वैसे, हाँ, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अगर आप इस्केप नहीं कर सकते गन के ऊपर, तो फिर ये है ना कि सबसे पहले तो क्वेश्चंस करें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है ना। अगर उसको आपका फिजिकल थ्रेटिंग नहीं है, उसको पैसे चाहिए, तो मेरे कहता हूँ कि इसको पैसे दे दें और उसके बाद ना इसको जाने दें। और आप इनको थोड़ा सा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, डरा भी सकते हैं कि ठीक है ना, आपको पैसे चाहिए ले जाओ, ठीक है ना, अगर आपने मज़ीद कुछ किया तो फिर मैं शोर करूँगा। तो हो सकता है कि वो इस डर से वो अपना काम करके चले जाएँ, ठीक है ना। बाकी वही आ जाते हैं कि अगर वो फिजिकल यानी असॉल्ट करते हैं तो फिर जितना यानी आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, कर लें। बस गन इज़ रियली रियली डेंजरस, ठीक है ना, इसमें आपका जान भी जा सकता है। तो अंडर गुड गाइडेंस, गुड ट्रेनिंग, ठीक है ना, हो सकते हैं आपकी रिस्क कम हो जाए। All right. So we always have this, fear in the back of our minds, or kabhi like even I feel so that if I'm sleeping at night in my bedroom, and I think I'm always dreaded by this thought that somebody's there, and it's not like someone's there obviously, but एक आपको ख्याल आता है कि what if you find somebody in the middle of the night in your bedroom. So if God forbid that happens, what should you do? तो ऐसे सूरत में इन दिस सिचुएशंस, ठीक है ना, क्योंकि द अटैक इज़ ऑलरेडी इन योर रूम, ठीक है ना, फिर इसके बाद जो नहीं होता है, आई विल से दिस लास्ट असॉल्ट, ठीक है ना, आई विल से गर्ल फाइट बैक टू इट, ठीक है ना, जितना आपसे हो सकते हैं, ठीक है ना, अपना दिफा कर लें, ठीक है ना। तो डोंट लेट इट हैपन, यानी कि आपके साथ ऐसे बुरा हो जाए। All right, and I think you should, as precautionary measures, we always keep our phone with us, and we can always scream if nothing else. We can, हम शोर मचा सकते हैं, we can call the neighbors or call some family members, but do something like उसमें आपको कोई ना कोई action. You can't let it go, let it happen. I can't do anything. ठीक है, I try कर लें, ठीक है ना, तो यही है। All right, so what about those ladies who are overweight? मतलब कुछ फीमेल्स होती हैं जो एकदम भाग नहीं सकती हैं, या मतलब इतने ज़्यादा उनके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, या उनको वेट का थोड़ा सा इश्यू होता है। What can they do in a situation like this? एक तो ये है कि मार्शल आर्ट से आप का वेट लॉस भी हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ओवर वेट हैं और अपना दिफा करना चाह रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, आई थिंक देयर इज़ नो मच डिफरेंस, ठीक है ना, कि ओवर वेट है, योर हैंड, योर आर्म, जो नीज, इवन यू कैन बाइट, ठीक है ना, तो ये अपना डिफेंस फिर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ है कि यू कैन यूज़ सराउंडिंग वेपन्स, यानी आदत बना लें कि कोई ख़तरा हो जाए तो कोई चीज़ उठा लें और फिर उसके बाद ना वो वेपन यूज़ कर लें, कोई भी चीज़ हाथ में आ जाए घर पे। Right, and how about if there is an older person, for example, a 60-year-old woman, what can she do in her defense? ज़्यादा एज जो नहीं होता है, आई विल से कि थोड़ा सा वर्बल लैंग्वेज यूज़ करके जो नहीं होता है, क्योंकि वो मैच्योर्ड हैं, ठीक है ना, तो वो हो सकता है कि अपना वर्बल से कंट्रोल कर सकें, ठीक है ना, उनको डरा सकें, ठीक है। तो फिज़िकल क्योंकि वो वीक हैं, ठीक है ना, तो आई थिंक वर्बली बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो कि आप अपना अटैकर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो हो जाएं तो बेस्ट है वैसे। And can you give an example of like how would you defend yourself? Like I think this literally तो साइकोलॉजी जो नहीं होता, इफ़ यू कैन लर्न साइकोलॉजी ऑफ द अटैकर, ठीक है ना, आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं कहाँ पे, ठीक है ना, काम ख़त्म कर लें इसको, कि पैसे चाहिए, ठीक है, आप पैसे ले जाएं, ठीक है ना, और फिर इसके बाद हमें तंग नहीं कर लें, ठीक है ना। तो ये इनके साथ किसी तरह कम्युनिकेट करके जो नहीं होते मसला हल कर लें, ठीक है ना। आपका एज ज़्यादा है, इसने क्या करना है आपके साथ, ठीक है ना। तो यही आई विल से कि वर्बल लैंग्वेज कैन ऑल्सो गुड डिफेंस। अच्छा मास्टर चैन, सेल्फ डिफेंस तो एक ज़रूरत है ही आजकल के दौर में, बट व्हाट अदर प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन वुमेन टेक? मतलब कौन सा वेपन अगर है, या पेपर स्प्रे है, या कोई ऐप है
उसके बारे में आप कुछ बताएं या कुछ टिप्स दे दें कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग ले सकें। हाँ, ये जो आप पेपर स्प्रे वगैरह कह रहे हैं कि ये रख सकते हैं, ठीक है ना, बैग में रख लें, ठीक है ना, क्योंकि आप आजकल बहुत सारे लड़कियां बाहर निकल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा फील होते हैं कि ये जो स्ट्रीट है थोड़ा सा डेंजर है, तो मेरा ख्याल में पहले से थोड़ा सा वेपन को तैयार कर हाथ में अगर पेपर स्प्रे रख के आप चलते हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसका वजह ये है कि अगर आप नहीं यानी अपने प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो वो ये होता है कि अचानक सा क्योंकि वो अटैकर्स आते हैं, ठीक है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो उसको पिक करने का फिर उसके पास पे करना। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है ना, जहाँ सेफ़ है इस ओके है, जहाँ पे आप फील करें आप यू आर अलोन और ठीक है चल रहे गली में, और या सामने से कोई नज़र आते हैं कि सामने से कोई आ रहे, वो हो सकता है वो आपके ऊपर अटैक कर लें, तो आप जो नहीं होते कोई वेपन है जो हाथ में पहले से तैयार करके रखें। तो आई विल से आपको टाइम बच जाएगा, यानी जो नहीं होते जब वो ज़रूरत हो तो आपके हाथ में फ़ौरन जो नहीं होते वो तैयार हो, पहले से तैयार हो, ठीक है ना। राइट, एंड there are also some legal weapons and some illegal weapons जो मतलब एक कॉमन लोग नहीं अपने साथ कैरी कर सकते. So can you tell us about a few legal weapons that women can carry with themselves at all time? देखो लीगली के लिए आप चेक कर सकते हैं क्या चीज़ लीगल है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ डिफरेंस होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में नाइफ इजाज़त होता है, कुछ में गन इजाज़त होती है, ठीक है ना, लाइसेंस होती हैं। तो ये है कि कुछ छोटे नाइफ्स होते हैं, यू कैन हैव दैट। फिर उसके बाद ना अगर कुछ भी नहीं है हाथ में, जो आपके पास बैग में या कोई कलम है, पेन है, इवन दैट ऑल्सो यूज़फुल, ठीक है ना, तो वो जो नहीं होते यूज़ कर सकते हैं आप। And are there any apps, like I know कि कुछ apps आ भी रही हैं आजकल, but is there any particular app that you know of that we can use for our safety? या यू कैन यूज़ फ़ोन ऐप्स। पंजाब ने अभी रिसेंटली भी इंट्रोड्यूस किया है इस तरह। और फिर उसके बाद जो नहीं होता है, मैं कहूँगा कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर में जो एमरजेंसी नंबर्स हैं उसको फ्रंट में सेव कर लें, ठीक है ना, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होती हैं, तो यू कैन राइट ए एंड देन यू टाइप लाइक पुलिस, तो वो फ्रंट में आ जाएगा, ताकि जब भी आप फ़ोन खोलें तो आपको इमरजेंसी नंबर ना फ्रंट में आ जाए, तो आप जल्दी जल्दी कॉल बैक कर सकें। Right, so these were some very useful tips that Master Chen has given us, and some of them were new to me as well. So I think ladies, when it comes to protecting yourself, you should make use of everything possible. So my last question to you is that you have trained men and you have trained a lot of women as well. What was your overall experience with training women, and how was it different from training men? बस I have said about the naturally born male and female कि मेल आर स्ट्रॉन्ग naturally born, लेकिन फीमेल जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ट्रेनिंग करके। तो बी कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, और आप ज़रूर जो नहीं होते अपना दिफा कर सकते हैं, अपने के साथ एतमाद रखें, ठीक है ना, ट्रेनिंग कर लें, ठीक है ना, तो डू फाइट बैक। But are the ladies that come to you, do you feel like they're also equally motivated as men to continue with martial arts? Yes, I have seen lot of girls, ठीक है ना, बहुत मोटिवेट है और आजकल बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, ठीक है, और they are better than men, okay? Oh. That is surprising. So now we're going to show you some demo. कुछ self defense की drills आपको सिखाएंगे regarding different situations in which Master Chen is going to help us, and I will be showing you some demonstration with my partner Sarah. She is a Zumba instructor. So let's get some action. Okay, now I'm going to teach 5 techniques for every woman who can learn these drills. ठीक है, सारा सुल्तान विल बी एक्टिंग एज अ अटैकर एंड रिदा विल एज अ डिफेंसर. So let's begin. So there are many situations when an attacker want to grab the hands and wrist and then pull you towards somewhere else, ठीक है ना, वो आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और खींच के आपको कहीं लेके जाना चाह रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके साथ जाने के बजाय, ठीक है ना, अपना दिफा करके अपने आप को बचा लें, ठीक है। तो पहला रिस्क ग्रैब जो है वो अटैकर क्या करेगा कि आपका हाथ
पकड़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला अटैक जो नहीं होता है वो व्रिस्ट ग्रैब हम कहेंगे, ठीक है ना, कि अटैकर आपका व्रिस्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है ना, बचाए कि इसके साथ जाने के आप दिस आर्म करेंगे और फिर उसके बाद जो नहीं होता है आप स्केप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कर लो कि अटैकर आपका हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। रिदा जो नहीं होते वो क्या करेगी कि खींचने के बजाय, ठीक है ना, वो एक एक्शन लेगा जो कि अपना हाथ रिलीज़ हो जाएगा ईजिली, ठीक है ना। रिदा क्या करेगी, ये स्टेप लेगा, साथ ही हाथ को ऐसे बाहर की तरफ टर्न करेंगे, यस। और फिर इसके बाद इसको कहते हैं आउटसाइड रिस्ट लॉक, ठीक है ना। घुमा के दूसरा हाथ ऊपर रखें हाथ के ऊपर और थोड़ा सा खींचें और नीचे की तरफ जाएं। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, साइड किक करें एंड डिसएंगेज हो जाए, ठीक है। तो लेट्स ट्राई रिपीट वन मोर टाइम्स, ठीक है ना। ये अटैकर ने रिस्ट आपका पकड़ा है, ट्राई टू पुल यू, ठीक है ना। आपने क्या टर्न रिलैक्स, ठीक है ना, वापस आ गए, ये पाँव दोबारा पीछे जाएगा एंड देन साइड किक। तो सेकंड टेक्निक जो होती है आर्म ऑन शोल्डर्स, ठीक है ना। फर्स्ट कर लो कि रिदा बड़ा रिलैक्स खड़ा हुआ है, वहाँ पे देखो साइड से कोई आ जाता है एकदम से जो नहीं होते वो हाथ आपके कंधे में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, रिदा उसके राइट हैंड को अपने हाथ से पकड़ लेंगे इसको और फिर उसके बाद एक सेंटर में स्केपिंग पॉइंट्स होते हैं। आप अपना सर को पीछे की तरफ पुल करेगा या पीछे अपना सर की तरफ पुल करेगा या बाहर निकालेगा, यस। और फिर उसके बाद आर्म बार लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, यस, एंड देन स्केप। लेट्स ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेशन अगेन, ठीक है ना। रिदा बड़ा नेचुरली खड़ा हुआ है, ठीक है ना। साइड से कोई आ जाते हैं एकदम से हाथ में रखता है, ठीक है ना। इसका हाथ पकड़ के ये आर्म बार एंड स्केप। थर्ड टेक्निक जो नहीं होता है, इफ़ बाय एनी चांस के आपका कोई बाल पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, और फिर वो खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ द अटैकर इज गोइंग टू ग्रैब द रिदास हेयर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हाँ अब क्या करेगा इस सिचुएशंस में, ठीक है ना। रिदा अपना पूरा बाजू को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना, और एक लॉक करेंगे इसके ऊपर, यस, एंड पंच एंड देन स्केप। लेट्स डेमोन्स्ट्रेट वन मोर टाइम्स, ठीक है। तो रिदा वाज नेचुरल स्टैंडिंग, ठीक है ना, ग्रैब किया, थोड़ा करीब हो जाए, यस, ऐसे, और इसको लॉक लगाएं, यस, एंड पंच एंड देन स्केप, गुड। टेक्निक नंबर 4, ठीक है ना, अगर सामने कोई खड़ा है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद सामने से अटैकर आ जाते हैं और आपको हक करके आपको उठा के कहीं लेके जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है ना, पहले तो अटैक करके दिखाएं कि इस तरह अगर अटैक हो जाए, ठीक है ना। ये इसने पकड़ने की कोशिश की आगे जाके, सो यू गो टू बियर हक, ठीक है ना। सबसे पहले रिदा क्या करेगा, अपना जो नहीं होता है मोबिलिटी को जो नहीं होता है मजबूत करेगा, वो अपना वेग डालेगा, यू कैन सिट, यानी सिट। फिर इसके बाद जो नहीं होता है सबसे वीक पॉइंट्स होते हैं ना आपके अटैकर के, वो आइज़ होते हैं, ठीक है ना। एंड यू कैन ईजिली रीच द आइज़ एंड पिंच इट, इसको ज़ोर से दबाएं, ठीक है ना, और वो चीखें निकालें और फिर उसके बाद जो नहीं होता है इसका सर को घुमाएं एंड देन स्केप। लेट्स डेमोन्स्ट्रेशन वन मोर टाइम्स। तो ये आगे आया, ये पूरा पकड़ने की कोशिश किया, ठीक है ना, और पीछे थोड़ा सा वेग डालो, ठीक है ना, एंड देन अटैक द आइज़ एंड देन पिंच द हेड, ठीक है। ओके, लास्ट जो टेक्निक्स है वो है कि अगर आप बाय एनी चांस आप ग्राउंड में जब चले जाते हैं, ठीक है ना, सो फॉर एग्जांपल रिदा इज़ ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, यस। तो आपने पोजीशंस कैसे रखने वंस यू आर इन द ग्राउंड, कि आप थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट कर लें, ठीक है ना, और पैर को थोड़ा सा उठा लें, ठीक है ना, यूँ, ठीक है ना। इफ़ समबडी कम्स क्लोज यू कैन किक, ठीक है, और यू कैन टेक हर डाउन, ठीक है ना, एंड देन ये आपने राइट से हुक किए, निकाला, गिराया और पीछे स्केप हुआ, ठीक है। सो लेट्स डेमो वन मोर टाइम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रिदा इज ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, एंड देन योर अटैकर्स कम्स क्लोज टू यू, ठीक है ना, एंड यू कैन हुक अटैकर्स लेग्स हियर, और इस पाँव से आप किक कर सकते हैं इसको और उसको गिरा भी सकते हैं, ठीक है ना। गिराने के लिए आप सीजर टेक डाउन्स क्या करेगा, सीजर करेगा, टेक डाउन्स एंड देन स्टैंड अप एंड देन रन। So these are our 5 attacking situations, so you can learn and defend yourself. So thank you so much for Rida and Sarah to introduce our audience. Attention, chile. Attention, आपस में. Yes, chile. And thank you. So ladies, in today's video, we learned about how important it is to not only learn self-defense, but to keep your overall fitness intact.
और कितना ही फिज़िकल एक्टिविटी आपकी ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छी है बल्कि ऑल्सो फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस. It doesn't only make you look beautiful, but it makes you feel beautiful. And by learning a thing or two of self-defense, you don't have to wait around for somebody to rescue you, but you can actually defend yourself. I'm so thankful to have you here today, Master Chen, and thank you so much for taking the You're time welcome. out. So I hope you enjoyed the video today, and now it's time for me to make that little announcement. So I have an activity for you guys. जो भी अपनी 5 to 7 minutes वीडियो हमें सेंड करेगा एंड देन फ्रॉम दैट वी विल सेलेक्ट द बेस्ट वीडियो. हम ना सिर्फ उसको अपने चैनल पे प्ले करेंगे बट दे विल रिसीव अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम vegas.pk. So don't wait around and record your videos, ladies, and I'll see you in the next one. Till then, take care and stay safe.